اور آج ہم تھینک یو کہنا چاہوں گا جو ہماری یوتھ ہے جو سنتھیٹک ڈرگس میں پڑ جاتی ہے ان کو کرمنلائز نہیں کرنا چاہیے. ان کو ہمیں ایز پیشنٹ ٹریٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی بھی آپ کے گھر میں یا اسکول میں اگر ڈرگس لیتے ہیں اور اگر یہ پتہ لگ جائے تو ان کو ڈرانا, ان کو دھمکانا یہ بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بچے کبھی آگے نہیں آتے ہیں. اور اسی لیے میں کیونکہ یونائٹڈ نیشنز آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں پاکستان میں, تو ہم نے جو ہماری ایک فلم, میں پہلی دفعہ ایک فلم میں ایکٹنگ کر رہا ہوں. آپ سب نے سنا ہوگا الف نون آتا تھا ایک پہلے الن اور ننا, سو آئی ایم ایکٹنگ ایز الن. سو یہ پوری فلم جو ہے وہ اصل میں ہے تو پولیٹیکل سیٹائر, بٹ یہ ڈرگس پر ہم نے کی ہے کہ ینگ بچوں کو ہم کیسے یہ سمجھا سکتے ہیں کہ اگر وہ ڈرگس میں پڑ بھی جائیں تو وہ ہیلپ لیں, وہ پوچھیں اپنے ماں باپ سے پوچھیں, اور کیسے ہم ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں جہاں پر ماں باپ اور کالج انسٹیٹیوشنز کے جو بڑے ہیں وہ ان کو کرمنلائز نہ کریں, ان پہ اسٹگما نہ لگائیں کہ دیکھیں یار یہ ڈرگس لیتے ہیں, اور ان کو آئسولیٹ نہ کریں. سو یہ بہت ضروری ہے کہ اس بات کو ہم آگے لے کے جائیں, اس ڈبیٹ کو بڑھائیں, اس پیراڈائم کو چینج کریں. تو یہی سب سے بڑا ہمارا مقصد ہے. بٹ تھینک یو سو مچ, آپ نے آج انوائٹ کیا اور اتنے زبردست ہمارے لیجنڈز یہاں پر موجود ہیں. تھینک یو. تھینک یو. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں یہ ہماری اپنی ڈیوٹی ہے. پہلی بات تو مدر اینڈ فادر جو فیملی ممبرز ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے بچے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اکثر میں دیکھتا ہوں, میں بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ بچے رات کے 12 بجے تک کھیل رہے ہوتے ہیں, مگر کبھی بھی ان سے بھی ایک دوسری بھی چیز ہو سکتی ہے کہ ہاں غربت کی وجہ سے بھی ہے. یہ چیزیں بڑی یعنی کہ ایک اس طریقے سے ہیں کہ غربت جو ہے وہ سب سے پہلے اس چیز کو بھی لے کے آتی ہے کہ بچوں کے پاس لگاتے ہیں ان کو اس طرح سے اور ان سے دوسرے کام کراتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ پیرنٹس جو ہیں, بھائی بہن ہیں, ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو, مجھے یاد ہے کہ ہم جب بچے تھے تو ہمیں 8 بجے کے بعد باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں تھی. آج کل میں دیکھتا ہوں کہ بچے 2 2 3 3 بجے تک ہے نا لوڈو کھیلتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں. تو دونوں چیزیں ہیں, بچے لائن پہ لگ جاتے ہیں مگر اس کے پیچھے اگر دیکھے جائے تو ہم اپنے آپ کو ہی بولتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر سپروائز نہیں کیا, ہم نے ان کو صحیح ڈائریکٹ لائن نہیں دی. جس طرح کی لائن ڈائریکٹ اور گھر سے ملے گی وہی تربیت ہے, اور اسی طریقے سے یہ اس چیزوں سے بچوں کو روک سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے, اور میرا خیال ہے جو لوگ یہاں پر اس وقت اسٹیج پر موجود ہیں اور جو پارٹیسپینٹس ہیں یہاں پر, یہ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق اس لیے ہیں کیونکہ ایسے ایونٹس کو پروموٹ کرنا ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. اور جو لوگ نہیں آئے شاید وہ اس مسئلے کو اتنا سنجیدہ نہ لیتے ہوں. تو میں آپ سے صرف ایک اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کروں گا کیونکہ میں کرنٹ افیئرس پولیٹیکل ٹاک شو ہوسٹ ہوں. تو ہمارے یہاں یوزلی سبجیکٹس بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیجسلیشنس پر, پالیسیز پر زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن انٹرسٹنگلی میں نے اس ایشو کے اوپر, نارکوٹکس پہ, ڈرگس پہ, ڈرگ ایڈکٹ جو اسٹوڈنٹ ہو جاتے ہیں ان کے اوپر 1 2 پروگرامس کیے آج سے کچھ سال پہلے. تو میرا یہ خیال تھا کیونکہ بہت سے جرنلسٹ اس وجہ سے یہ شوز نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ اس کے لیے کوئی ڈیڈیکیٹڈ اسپیسیفک شوز ہیں جو چلتے ہیں نارکوٹکس پہ, ڈرگس پہ یا کرائم کے اوپر. لیکن کرنٹ افیئرس کے شو کے اندر بھی اس کی ریٹنگ بھی آئی اور بہت زیادہ پذیرائی ملی, اس پروگرام کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. تو میرا یہ خیال تھا کہ شاید اس کو اتنی کوریج نہ ملے لیکن لوگ اس کو سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے. اور جو آپ یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیز, کالجز اور اسکولز میں تو اب زیادہ ہے, مطلب ڈرگز وہاں زیادہ ایزیلی اب اویلیبل ہو گئی ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر پاکٹ پلیس. تو ہمیں ادھر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, یونیورسٹیز میں, کالجز میں زیادہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے, انفیکٹ اسکولس کے اندر کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سب سے پہلے یہ رسپانسبلٹی میڈیا کی سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو ایک اسپیشل سیگمنٹ ان ایشوز کے اوپر کنٹینیو کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ ایسی ہے کہ پاکستان اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا. پاکستان کی سراؤنڈنگ میں جو کنٹریز ہیں وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کیا انوائرمنٹ ہے. تو پاکستان گیٹ وے بھی ہے, پاکستان کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, اور ایز اے رسپانسبل سٹیزن اور نیشن وی نیڈ ٹو پلے آور پارٹ. بالکل, پارس بھائی موجود ہیں. اور بالکل, السلام علیکم اور بہت شکریہ ہمیں یہاں مدعو کرنے کا. اور پاکستان کوسٹ گارڈ جس ذمہ داری کو بڑی اہمیت سے نبھا رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. ظاہر ہے ڈرامہ, فلم اور یہ اس طرح کے سارے فنونی لطیفہ میں جو سارے پروگرامز آپ دیکھتے ہیں وہ بہت انفلوئنس کرتا ہے سوسائٹی کو, اور خاص طور پہ نوجوان نسل جو ہے وہ جب ڈرامہ دیکھتی ہے یا کوئی فلم دیکھتی
ज़रूरी है कि इस तरह के इस टॉपिक पे फिल्म्स बने या ड्रामे बने जिसमें वो नतीजा दिखाया जाए कि ये हो क्यों रहा है। बेसिक हमारे यहाँ मसला ये है कि हम ये तो दिखाते हैं कि क्या हो रहा है, वो क्यों हो रहा है इस पे कम लोग बात करते हैं या होता है ऐसा। बच्चे और नौजवान इस लत में क्यों पड़ जाते हैं, इसकी वजह जानना ज़रूरी है। ऐसा क्यों होता है कि वो इस तरफ निकल जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर काउंसलिंग जो घर से ज़रूरी है शुरू होना, माँ बाप अवेयर होने उनको होना चाहिए माँ बाप को कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। जैसे जावेद भाई ने कहा और शहजाद भाई ने कहा कि घर से तरबियत शुरू होती है। अपने बच्चे पे नज़र रखनी चाहिए कि वो, हम भी अब तो हमारे भी बच्चे हो गए माशाल्लाह, तो हम बहुत गहरी नज़र रखते हैं कि वो किससे मिल रहे हैं, किस वक्त कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है। और माशरे में जो बहुत सारे चाइल्ड लेबर में आप देखते हैं जो बच्चे मैकेनिक्स के पास काम कर रहे हैं, जो इधर उधर काम कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के नशे कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, उनकी क्या महरूमियाँ हैं, उनकी क्या तकलीफें हैं, वो किन चीज़ों से महरूम हैं, तो उन चीज़ों पे काम करना चाहिए, उस बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। और इस तरह के बिल्कुल आपकी सही बात है, ऐसे ड्रामे बनने चाहिए, ऐसी कहानियाँ सामने आनी चाहिए। शबीर तो देखेगा कि प्लेटफॉर्म पे ऐसी कई कहानियाँ मेरे सामने आई जिसको हमने कवर किया, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो नशे की लत में लग गए और उन्होंने अपने इवन फैमिलीज को नुकसान पहुंचाया। सो मैं समझता हूँ ये एक मिशन है जिसपे बिल्कुल मुआशरे को भी इससे इबरत लेनी चाहिए और मीडिया इसको दिखा रहा है। मिशन पे बिल्कुल कारबंद रहना चाहिए कि हमें इसको जड़ से उखाड़ना है। बिल्कुल नबील भाई की तरफ मैं चाहता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। देखिए, ये मुझे लगता है कि सोसाइटी बहुत ज़्यादा काम करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इसके पीछे देखेंगे तो बेरोज़गारी, जहालत, गुर्बत और ये आबादी का एक बॉम्ब जिसको हम फेस कर रहे हैं, ये सारी वजूहात हैं इस तरफ। और मुझे लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा एड्रेस करना चाहिए इस चीज़ को कि जैसे ये कोस्ट गार्ड वाले जो दोस्त हैं, इन्होंने बहुत अच्छा फंक्शन ये अरेंज किया है, लेकिन मुझे लगता है ये तो रोकने की हद तक है ना, हमें इसकी वजूहात पे काम करना चाहिए। जैसे इंग्लैंड में कुछ आप आज से कुछ 6-7 साल पहले काम हुआ था, वो राइट्स हुए थे कुछ, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये किया था कि 12 बजे तक अदालतें लगाई थी और देन वो सोसाइटी में चले गए और जाके उन्होंने चेक ये किया कि सिलेबस में कोई प्रॉब्लम है। जो लोग दुकानें लूट रहे हैं, खुली दुकान देख के लूटने चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में इन वजूहात पे काम करने की बड़ी ज़रूरत है। और दूसरा, जहाँ तक आपने ये पूछा कि शोबिस के हवाले से, तो हर शोबिस के लोग भी सोसाइटी का एक हिस्सा होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मिलके तो लोगों को मायूसी होती है ड्रग्स के हवाले से, और इसके लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ। माशाल्लाह जी। आमना इलियास साहिबा। Respected guests, सबसे पहले तो thank you so much for making me a part of this ceremony. I'm honored, and I want to thank the Coast Guard services for providing us with this protection for all of us कि हम ये drugs और substance and alcohol और इन सब चीज़ों से and especially human smuggling as well से हमें बचाने के लिए thank you so much. The issue about drugs is what I feel, क्योंकि मेरे बहुत एक immediate family में एक इंसान है who's been struggling with this for so many years now, and we are unable to tackle it. We did put this person in different rehabs to cure him, but unfortunately वो possible नहीं हो पा रहा. So when I saw कि Coast Guard वालों का एक अपना rehabilitation center है, तो मैं चाहूँगी कि इस तरह के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और बने, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि उनमें जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, द काउंसलिंग विच इज़ रिक्वायर्ड, दैट्स नॉट अप टू द मार्क. सो किसी इंसान को सिर्फ एक जगह पे बंद कर देना उसको सब्सटेंस अब्यूज से छुटकारा नहीं दिलवाता, बल्कि उसकी प्रॉपर काउंसलिंग, ट्रेनिंग, rehabilitation on a full level is very, very important. So I request
to Coast Guard services that please open more rehabilitation center where you can cater more people. Thank you so much. Thank you, Amna. आज सच में कुछ नहीं देना चाहती, but अस्सलाम वालेकुम everybody and thank you so much for having me over. मेरे से कई ज़्यादा सीनियर लोग यहाँ पे हैं, जावेद मियादाद साहब हैं, नबील भाई हैं, so many people जो ज़्यादा better मैसेज दे सकते हैं और ज़्यादा better चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये कैसे सॉर्ट आउट हो सकता है. So ऐसे टाइम में जब इंसान अपनी फैमिली के लिए भाग रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है कंट्री में, जो लोग पीछे खड़े हैं, जो एक्चुअली इस सिचुएशन के लिए कुछ कर रहे हैं, I would like to say thank you so much. Because honestly अब तो टाइम ऐसा आ गया सिर्फ अपना सोचना होता है, लेकिन आप लोग हमारे लिए सोच रहे हैं. So thank you so much for this. Thank you. शुक्रिया. सबसे पहले तो मैं कोस्ट गार्ड को, उनके डीजी को और उनके पूरे अमले को मुबारकबाद दूंगा इतना खूबसूरत प्रोग्राम बनाने के लिए. लेकिन एक अफसोस के साथ ये बात कहते चलूँगा कि मैं 3 साल अक़वाम मुत्तहिदा में रहा एज एक्सपर्ट एडवाइज़र ऑन ह्यूमन राइट्स, और मुझे ये नहीं पता था, मेरी बदनसीबी, कि मेरे मुल्क में इतना बड़ा काम हो रहा है. ड्रग्स के हवाले से मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगा. और दूसरी जो चीज़ मेरे लिए हैरान कुन थी, और फिर वही बात कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने मुझे एज हीरो करार दिया इन द फील्ड ऑफ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ठीक है. और यहाँ कुछ सुनना है. भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम हो रही है. अगर हमें पता होता तो कहने का मतलब ये कि अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, मैं मुमकिन है कि ड्रग्स पीते हुए किसी को देख रहा हूँ और मैं बड़ी खुशी खुशी उसको अपनाना भी चाह रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे अवेयरनेस होगी इस हवाले से और बैनुल अक़वामी सतह पे भी हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तो हम सबको मिल के मेरे ख्याल है कि एक टीम की हैसियत से आवाज़ उठानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. बहुत शुक्रिया. बिल्कुल जनाब. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आप सबको मेरा सलाम, और स्पेशली कोस्ट गार्ड और ड्रग्स नारकोटिक डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया. इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि मैं यहाँ आया हूँ, और मैं बहुत सालों से ड्रग्स, HIV एड्स, इन सब के लिए काम कर रहा हूँ. तो मुझे अंदाज़ा है कि जब डिप्रेशन में लोग जा रहे होते हैं तो ड्रग्स का सहारा ले रहे होते हैं. तो उन्हें मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, ड्रग्स आपकी ज़िंदगी नहीं. ड्रग्स से आप बिल्कुल, आप समझ लें, अपने आप को डुबो रहे होते हैं. आपके अंदर विल पावर, आपको चार्ज होना चाहिए, माइंड में हैप्पीनेस होना चाहिए. फैमिली बैकग्राउंड को फॉलो करते हुए अपने आप को एनर्जेटिक रखें, वर्कआउट करें, फिटनेस ट्रेनिंग करें. हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में रौनक बख्शेगी. आप इससे बचिए ड्रग्स से. तो मैं इसके लिए 2 लाइन, मैंने इसलिए मैं इस तरह की चीज़ों के लिए मैं काम करता रहता हूँ, मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है. तो 2 लाइन आपको मैं इस बारे में सुनाता हूँ, लेकिन आपकी तालियां भी मेरे साथ देगी तो मैं आपको सुनाऊंगा. आर यू रेडी? जिंदगी प्यारी लगे, क्या बात है. जिंदगी प्यारी लगे, जीने की जागी उमंग, खुद को बचा के सबको बचाएं. ड्रग्स से हम सब को बचना है, हेरोइन से हम सब को बचना है, शराब से हम सबको बचना है, हैश से हम सब को बचना है. पाकिस्तान जिंदाबाद. मौके पे पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने ये पुररौनक महफिल का इनेकाद किया, और सबसे बढ़ के डिस्ट्रक्शन सेरेमनी तो है, लेकिन आज पहली. अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ऑनरेबल फंक्शन में मुझे मदऊ किया. सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें सब लोग कर चुके हैं. मैं कुछ भी कहूँगा वो रिपीट ही होगा. बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे जानने वाले हमने इन ड्रग्स के हाथों तबाह होते हुए देखे, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं. हसन भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि अगर हमारे पास खुशियाँ हों और हमारे पास उम्मीद हो तो शायद हम इन चीज़ों पर डिपेंडेंट ना हो. प्रॉब्लम ये है कि हम जो सिचुएशन से ज़ाहिर मुल्क गुजर रहा है इस वक्त, उसमें जो नौजवान हैं, ख़ास तौर पे जो लड़के हैं, उनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो बहुत आसानी से इन चीज़ों की तरफ जो है माइल हो जाते हैं और उनको कोई वापस लाने वाला नहीं होता. और इस तरह के फंक्शंस आप लोग जो कर रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत जिसको कहते हैं, इसलिए अच्छे हैं कि ये मैसेज पहुंचना चाहिए. इस बात पे डिस्कशन ही नहीं होती, ना मीडिया में कहीं होती है, ना कहीं और होती है. तो कोस्ट गार्ड ने जो है वो इस तरह के फंक्शन का इनेकाद किया है. मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है कि आप लोग ये रिस्पॉन्सिबली इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे, और इतने सारे जो माशाल्लाह सितारे यहाँ खड़े हैं, इनकी आवाज़ जो है वो जहाँ जहाँ पहुँच सकेगी वहाँ पहुँचेगी थ्रू दिस प्रोग्राम.
Thank you very much. थैंक यू। प्रोग्राम का जो टाइटल बनाता हूँ ना, इंतजार कीजिएगा, आज मुझे मुकदमा पढ़ा है तो मुझे पता चल गया कि इंतजार करते कैसे हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड गुलाम अब्बास साहब, आप सबकी कोशिशें, काविशें, जस्तजू लगन बहुत काबिल तहसीन है, लेकिन एक अहम तरीन बात है कि मीडिया ने क्या किया है नारकोटिक्स के लिए, मीडिया ने नारकोटिक्स के रोकथाम के लिए क्या किया है, मैं आपको बताऊं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते मैंने अभी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के तकरीबन 12-13 एपिसोड्स बनाए हैं, गवादर में बनाए हैं, कराची में बनाए हैं, जीवनी में बनाए हैं, बसनी में बनाए हैं, और उसके अंदर हम दिखाना यही चाहते थे, लोगों को याद ये दिलाना चाहते हैं कि देखिए, किसी भी मुल्क को अगर तबाह बर्बाद करना हो तो उसकी रगों में मुनशियात का जहर आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू कर दें, वो कौम खुद ब खुद तबाह हो जाती है। और देखें, एक बड़ी अहम बात है, वो बात सिर्फ ये है कि आदमी अगर ये चाहे कि वो पूरे माशरे को बचा ले, पूरे वतन को बचा ले, पूरे शहर को बचा ले, बड़ा मुश्किल काम है। एक आदमी अगर फर्दन इस कोशिश में, इस काविश में लग जाए, घर के जो साहिब खाना हैं इन बातों पर नजर रखें कि अगर बच्चे के पास पैसे नहीं होते तो अचानक पैसे कहाँ से आ रहे हैं, घर की चीज़ें गायब हो रही हैं तो ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं, और फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर सिर्फ एक ही बात याद रहती है इंसान को कि जब आदमी तबाह बर्बाद हो जाता है तो वो लौटने की कोशिश करता है जो उसके लिए नामुमकिनात ऐसे हो जाता है। जो लोग सेहतमंद हुए, नशे के बावजूद जो सेहतमंद हुए हैं, जिन्होंने अपने घर को दोबारा संभाला है, अपनी ज़िंदगी को संभाला है, वो उन लोगों को ये चाहिए, हुकूमत वक्त को ये चाहिए, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड, कस्टम, इन सारे इदारों को मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों को सपोर्ट करें ताकि वो गलत राहों पर दोबारा गामजन ना हो सकें। बहुत शुक्रिया। मारिया बिल्कुल अवेयरनेस हम एज अ सिनेमाटोग्राफर डायरेक्टर फैलाते हैं फिल्म के थ्रू, ड्रामों के थ्रू, और उसमें ऐसी स्टोरीज दिखाते हैं कि वो आपको अवेयरनेस दे सकें। तो हम भी एज अ चाहते हैं कि इसी तरीके से हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए। इधर आए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। एंड कॉर्डलेक्स माइक आए, और मैं इन सब लोगों से इनके